हेलो प्रणाम नमस्कार। पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरा इको फ्रेंडली सस्टेनेबल पॉडकास्ट ग्रीन तत्व टॉक्स। सस्टेनेबिलिटी इस वर्ड के ऑनलाइन सर्चेस में देयर हैज बीन एन एम्पल इंक्रीज. See, date back to since 2018, there has been an increase of 75% in online searches for the word sustainability. And there is no shock considering how this is currently a buzzword in the media since the last couple of years. And I'm sure to all my listeners that this is not the first time that you have come across the word today. I'm sure you have seen the word on social media, newspaper, TV, or maybe on signposts and advertisements in the train, station, street, or even the roadside. The point is, as a society, we are aware of sustainability and its importance. While some of us maybe even are sustainable minded, the information surrounding sustainability may be a little vague for few of us also. Sustainability इस वर्ड से अगर आप अनफेमिलियर हैं, जिस बात करूँ डेफिनेशन की, so this is how it is defined in the Oxford Dictionary, that the property of being environmentally sustainable, the degree to which a process or enterprise is able to be maintained or continued while avoiding the long term depletion of natural resources. In simpler terms, अगर कहें तो what we do now ultimately affects our future. यानी कि making wiser choices without harming the environment and thinking ahead to protect future generation is sustainability. Simple, right? Well, not always. Ensuring that sustainability is at the forefront of society's thinking can be tricky because sustainability is everyone's responsibility. So, jab some of the people don't pitch in as much as others, progress can be slow. And day to day, we can do many small yet hugely beneficial things to care for the planet. Like some of my favorites are using a reusable water bottle and saying no to the disposable single use plastic bottle. Even buying secondhand. You can check out the vintage ones or the ones available in your local society groups. And of course, eating local or cooking your own meals. So I think that sustainability shouldn't come at a cost. And as a nation, I think we are actually doing pretty well. But yes, the contribution is certainly needed. जब हम सस्टेनेबिलिटी को थोड़े ब्रॉडर एंगल से देखते हैं सो देर आर फ्यू गोल्स जिसे हम एसडीजी कहते हैं एंड उसके 3 पिलर्स हैं जो कि ईएसजी यानी कि एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक कहलाए जाते हैं. ये पिलर्स रिप्रेजेंट करते हैं द interconnected aspects of sustainability that individuals can actively work towards. फिर वो चाहे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करना हो, एक हेल्दी प्लानट को प्रमोट करने के लिए उसमें फेयरनेस एंड इक्विटी लाना हो, इंडिविजुअल्स की सोसाइटी में वेलबींग हो, या एक स्टेबल एंड रिजिलियंट इकोनॉमी दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस हो, जो कि सस्टेनेबिलिटी के डेफिनेशन में आता है. सो एसडीजीज एंड जितने भी हम ईएसजीज और ये जो बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और आज बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके एफर्ट्स कैसे काउंट हो सकते हैं. और इस बात करने के लिए आज मेरे साथ ग्रीन तत्व टॉक्स पर है धनश्री अग्रवाल, जिनके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है Sasti Hasti Zindagi. Well, that is not a Sasti one, that is a Sasti one, which means the sustainability. जो उनकी, I must say, she is so passionate about the sustainability that she loves to spread it through her humor, जो कि उनके Instagram handle पे बहुत अच्छे से sprinkled आपको नजर आएगा. So to talk about more about the sustainability and low waste lifestyle, जो कि धनश्री खुद भी लीड कर रही है एंड शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प पीपल नो कि वो कैसे लीड कर सकते हैं. लेट्स वेलकम धनश्री टू ग्रीन तत्वा टॉक्स पॉडकास्ट.
Hey Tanushree, how are you? Hello, hi Prachi. Thank you so much for such a lovely introduction. Thank you so much for having me as well. And That's yeah, that's that's I thank must you. say that you deserve it because people like you who are on ground doing these kind of activities, मेरा सबको बिल्कुल प्रणाम है कि you people are trying your best to help people know कि कैसे हम अपने लेवल पे ये छोटी चीजें डेली कर सकते। ओके, सबसे पहला सवाल तो धनुषी, ये सस्ती हस्ती जिंदगी इस इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में मुझे बताओ, बिकॉज मुझे ये हैंडल का नाम बहुत प्यारा लगा एंड दिस इज रियली लवली। सो ये कब से शुरू हुआ सफर एंड लाइक हाउ डू यू थिंक कि यस मुझे Yeah, ये नाम रखना है एंड दिस इज समथिंग लाइक आई शुड गो ऑन विद, प्लीज yeah. गो। Yes, definitely. So I think it started in April 2023, and that's when I decided to कि I want to have an Instagram page. So first I'll talk about कि ये नाम कहाँ से आया. तो once you decide कि Instagram page, तो सबसे पहले तो हम नाम ही सोचते हैं क्योंकि वही सबसे important होता है. So I wanted it to be like, yes, going to talk about sustainability also, but it also should be like कि how it's a very fun thing. It's a part of your life, and your life also becomes hasti sort of अच्छी life हो जाएगी if you follow this sustainable lifestyle वगैरह. And I also wanted it to be like it's my सस्ती हस्ती जिंदगी but तुम्हारी भी हो सकती है sort of. So like documenting my life. So I went through like so much of thought process, and then I thought कि ये थोड़ा सा ऐसा फन सा लविंग सा वार्म सा भी लग रहा है जो शायद नाम पढ़ के शायद लोग फॉलो कर दे, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर फॉलो कर ही लेते हैं लोग एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग दिस जर्नी, सो दैट वाज माय होल आइडिया बिहाइंड इट. या. Right. That's beautiful. So once again, I would love to tell my listeners कि धनश्री अग्रवाल के इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है सस्ती हस्ती जिंदगी, which is spelled as SUSTY underscore HASTI underscore zindagi ZINDAGI. So please follow Dhanashri. She has been sharing a lot of wonderful things जो कि daily life में how she is able to live, फिर वो चाहे ग्रीन पीरियड्स हो, फिर वो चाहे उनका ट्रैवल का हो, फिर वो चाहे क्लाइमेट चेंज एंड सोशल जस्टिस के लिए धनश्री के खुद के व्यूज हो, kitchen space हो, there are a lot of reels and videos which Dhanashri has been sharing on her this Instagram handle titled Sasti Hasti Zindagi. Okay, moving ahead. ये बताओ धनुश्री कि जब आपने ये सोचा कि ओके आई हैव टू लाइक ओके, मैं यहाँ पर एक मिनट के लिए पॉज देना चाहूंगी। धनुश्री इज ऑफ कोर्स द यूथ ऑफ टुडे, जिसे कि हम आज के डेट में मैं ऑफ कोर्स कहूंगी जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि यस वी हैव टू गिव अ ग्रीनर बेटर planet which we want to leave for the youth of today, for the children of today. So Dhanashri herself is an engineering student and she has worked with lot of few things like beach cleanups है या composting है या जो भी community level की activities है, she has always been involved with it. And when she started this handle, she has been advocating the ways कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। एंड बहुत मुझे अच्छा लगा था जब धनुश्री ने मुझे व्हेन वी वर डिस्कसिंग कि हम क्या कर सकते हैं, शी सेड अ वेरी सिंपल लाइन: sustainability is not only about plastic straws, it has an economical social impact which is very layered. And I completely agree with you Dhanashri कि एक बैग उठाना, ऑफ कोर्स बैग उठाना आपकी जिम्मेदारी में आता है, लेकिन सिर्फ एक बैग उठा लेना यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती है। आपने एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को छोड़ा, वंडरफुल, दिस इज एक्चुअली नीडेड, बट बात वहां खत्म नहीं हो जाती है। सो ये बताओ धनुश्री के जैसे कॉलेज खत्म हुआ, सो यू हैव बीन वर्किंग आल्सो, व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे एक ऐसा इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए जिससे मैं लोगों को ये इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ? Was there any moment या ऐसा कुछ हुआ था कि something came across you and you decided कि नहीं मुझे ये अवेयरनेस देनी है? How you thought about it? वो बताओ प्लीज। या, डेफिनेटली. तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने 2023 में चालू किया, लेकिन जो ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल या जो लेबल लेके मतलब जो मैंने खुद से फॉलो करना चालू किया वो काफी टाइम पहले से हो चुका था चालू. ओके। So, what happened was, so first I'll talk about when did I like completely got into this whole journey. So it's very like it's all about, since हम सब अब Instagram पे रहते हैं तो मेरा algorithm एक दिन shift हो गया. I came across a post which was about दिवाली recycling drive हो रहा था एक by a certain company. तो I was like कि this sounds good, वो घर पे आ रहे हैं, हम दिवाली की सफाई करने वाले हैं, सो सब कुछ निकल जाएगा. एंड जब दिवाली की सफाई की आई रियलाइज कि
I had collected like so many of the things, like कार्डबोर्ड बॉक्सेस से लेके प्लास्टिक बैग से लेके जार से लेके सब सारी चीजें मैं बस उनको होल्ड करके रखती थी सालों से, कि थिंकिंग कि वो कभी ना कभी काम आ जाएंगे। एंड आई रियलाइज कि आई ऑलरेडी डू सॉर्ट ऑफ वैल्यू थिंग्स, की एक प्लास्टिक बैग क्यों फेंके, कभी ना कभी काम आ जाएगी। एंड आई रियलाइज कि इसमें और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या बेटर वे में रिसाइकल कर सकती हूँ चीजों को, सेग्रीगेट। सो आई स्टार्टेड टू रीड मोर अपॉन इट, स्टार्टेड टू फॉलो मोर एंड मोर पीपल अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, आई वाज परचेसिंग अ compost bin. I was very like deep down into the whole sustainability thing, but I was only doing it on individual level. एंड मतलब अपने में ही कर रही थी मैं। तो फिर मेरा बर्थडे आया, एंड बर्थडे पे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, उसकी मॉम, मेरी मॉम, हम लोग गए थे लंच पे। सो उधर लंच पे हम गए थे, तो लाइक दे ऑर्डर्ड समथिंग टू ड्रिंक वगैरह। तो आई वाज लाइक आई आई डोंट वांट द पेपर स्ट्रॉ दैट दे गिव वगैरह। मतलब आई हैड टू एक्सप्लेन ऑफ सॉर्ट्स कि अभी मैं ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ वगैरह। एंड देन आई थॉट कि दीज आर वेरी क्लोज पीपल अराउंड मी, लाइक, एंड उनको भी अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि व्हाट डू आई डू, then probably I'm not doing it loudly, and I should do it loudly, like loudly show people कि I'm following this lifestyle ना। हो सकता है एक दो लोग भी अगर इंस्पायर हो गए। तो उधर से आया कि I just want to be loud into what I do. I want to tell the world this is what I do. You, if you want to do, you can hop on my journey, and that's how it all started. दैट्स वंडरफुल। मतलब मैं ये कहूंगी कि व्हेन यू थॉट कि ये जो मैंने डी क्लटरिंग की है या दिवाली की शॉपिंग की है, सो दैट वाज योर मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि ओके आई हैड टू टेल द पीपल। ऑफ कोर्स दैट्स रियली वंडरफुल, बिकॉज इनफैक्ट मैंने कल ही एक रील आई केम अक्रॉस जिसमें मैं बोले कि ऑफ कोर्स वी एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट वी फॉरगेट इज डी क्लटरिंग। चीज खरीद के तो ले आते हैं, हम भूल जाते हैं कि ओके उसका एक टाइम है जिसके बाद आई थिंक हमें उसको निकाल देना चाहिए या उसको साइड कर देना चाहिए। वी ऑलवेज कीप ऑन पाइलिंग अप। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैं हमेशा अपने शोज में भी बोलती रहती हूँ, मार्केट, मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन कंज्यूमर्स लाइक अस कि हाँ यहाँ पर ये चीज सस्ती मिल रही है, व्हाई नॉट बाय इट। ओके गणपति आ गया, ओके दिवाली आ गया, ओके देयर इज अ फेस्टिवल, न्यू ईयर इज कमिंग, they somehow pressurize you कि okay ये नई चीज आई है मार्केट में, okay you should buy, and then we end up buying it, we end up holding it as you said कि जब मुझे realize हुआ कि हाँ मैंने होल्ड किया है, तब हमें अचानक से लगता है कि नहीं this is not right, and it's really wonderful कि ये decluttering से you started with this सस्ती हस्ती जिंदगी, which is a beautiful thing। मुझे एक बात बताओ, when you as a youth, when I say आप घर में जब बोलते हो कि ओके आई हैव टू एडवोकेट दिस या आई वांट टू ट्राई दिस, हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड्स? बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म व्हेनेवर, मतलब मैं अपने दोस्तों को अभी तक नहीं समझा पाई हूँ कि टिश्यू पेपर का यूज कम कर दो, बिकॉज उनका कहना एक टिश्यू पेपर ही है, एंड आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर दिस। सो टेल मी एज अ यूथ व्हेन यू डिसाइडेड कि ओके मुझे ये डिक्लटरिंग करनी है, व्हेन आई सॉ कि ओके मेरे घर पे चीजें मैं बहुत होल्ड कर रही हूँ, how was it to convince the family and friends कि जब आपने डिसाइड किया कि ओके मुझे अब थोड़ा सा इन चीजों को रोकना है, या आई हैव टू बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर, या आई हैव टू फाइंड माइंडफुल चॉइसेस, मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, हाउ वाज दैट, हाउ यू हैंडल्ड दैट? Yes, yes. So definitely, since I live with my parents, फैमिली में पेरेंट्स भी है, एंड जो भी घर पे सब काम वगैरह करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ सिस्टम दैट इज ऑलरेडी प्लेस। ऐसे ही काम हो रहा है, कचरा मिक्स हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, इट्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग एनी न्यू सिस्टम या एनी न्यू चेंज। तो उसको धीरे धीरे करना पड़ता है, लाइक टू गिव लाइक बेस्ट। तो आई स्टार्टेड फर्स्ट, क्योंकि एकदम से ही सब कुछ नहीं कर पाते, ओवरवेलम हो जाएंगे, तो छोटी छोटी चीजों से चालू कर दिया। जैसे फर्स्ट आई जस्ट स्टार्टेड टू कलेक्ट, लाइक सेग्रीगेट ओनली द प्लास्टिक। तो वेट वेस्ट तो हो ही रहा था, आई हैड नॉट स्टार्टेड कंपोस्टिंग। तो धीरे धीरे प्लास्टिक जमा करना चालू कर दिया, तो उससे ही पेरेंट्स गॉट ओवरवेलम किए, क्या कचरा जमा करके रख रही है एक जगह पे, रोज फेंक क्यों नहीं रही है। आई वुड, बट आई थिंक आफ्टर सम पॉइंट दे ऑल्सो गेव अप, दे वर लाइक ठीक है ना, वी हैव टू लिव विद इट, अब ये ऐसा हो रहा है। देन आई धीरे धीरे बॉट अ compost bin and started to segregate the wet waste also। फिर दे वाला कि क्या कर रही है, सब गंदा कचरा क्या जमा करी, कचरा कुंडी बना के रखा एंड ऑल। एंड आई थिंक नाउ देव गॉटन यूज्ड टू इट, एंड इवन माय फ्रेंड्स एंड ऑल। so in the start also they they would also make fun, but they would also understand कि वो what the thought process around it, and कहीं ना कहीं पे वो एक दो चीजें कर लेंगे, जैसे कि उनको कोई रील दिख गया तो मुझे भेज देंगे
वो कभी बॉटल कैरी कर लिए तो मुझे भेजेंगे सी आई कैरिड माई बॉटल, या कभी कोई छोटी छोटी चीजें कर लेते, सो यू नो दैट दे आर समवेयर रूटिंग फॉर यू, एंड what whenever possible they also try to do जितना होता है, and yeah the response is like mixed with love also, and yeah with कि ये क्या चल रहा है. आई वुड सर्टेनली विश धनश्री कि आपको फैमिली का, फ्रेंड्स का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे। एंड ऑल माय लिसनर्स आल्सो प्लीज सस्ती हस्ती जिंदगी को फॉलो करें एंड हेल्प धनश्री टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस मोर एंड मोर। आपने जब अभी छोटी सी एक बात कही ना, उससे मुझे कोटेशन याद आती है हार्वर्ड जन की, we don't have to engage in grand heroic actions to participate in change. Small acts when multiplied by millions of people can transform the world. And as she said, एक दिन में वो चेंज ऑफ कोर्स नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी। आई थिंक वही मैटर करती है। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। जैसे आपने भी कहा ना कि किसी ने बॉटल कैरी की और आपको पिंक करके बताया, एटलीस्ट यू आर एबल टू टेल दैट पर्सन कि यस डिस्पोजेबल प्लास्टिक यूज नहीं करना है। आपको किसी ने बैग कैरी करके बताया, यस मैंने बैग कैरी की, एंड दे आर एक्चुअली काउंटिंग ऑन यू। दिस इज वंडरफुल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि सस्ती हस्ती जिंदगी इसी तरह से ग्रो करें एंड पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ towards a more better, more mindful and towards a more conscious level. Okay, धनुषी छोटी सी एक बात करूंगी। जब हमने वही इकोनॉमिकल इसकी बात की थी, हैव यू नोटिस एनी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट? बिकॉज जब हम बोलते हैं कि यस आपने बॉटल कैरी की, यस आपने बैग कैरी किया, यस आपने बाहर गए तो अपना टिफिन कैरी करके लेके गए, इस सब का एक जैसे हम कहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है। हैव यू सीन एनी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और इफेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, से 2 years और 3 years, जो आपको अपने डेली लाइफ में या आपके घर में नजर आया हो ड्यू टू द चेंजेस व्हिच यू स्टार्टेड इनकॉर्पोरेट? उसके बारे में बताओ प्लीज। यस 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 डेफिनेटली। तो जैसे मैं अपने पेज पे भी बोलती हूँ कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपके इवन करियर गोल्स या आपके हेल्थ गोल्स, सब कुछ डिपेंड करते हैं आज के जमाने में एटलीस्ट आपका एल्गोरिदम कैसा होता है, आप किस लोगों को फॉलो करते हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली उन लोगों को फॉलो करोगे जो सिर्फ शॉपिंग प्रमोट करते हैं ज्यादा, कि ये कपड़े खरीदो ये ट्रेंड में चल रहा है, सो यू आर you will most likely be ki I want to buy these things. If you follow more sustainable people, you won't be sold constantly the idea of buying new things. तो डेफिनेटली जब से मैंने भी अपना सस्टेनेबिलिटी की तरफ शिफ्ट किया है, आई हैव डेफिनेटली सीन कि वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ही ज्यादा पैसे भी बच जाते हैं, बी इट सिंपली कैरिंग योर रियूजेबल बॉटल, और बी इट इवन बाइंग अ शैम्पू बार. सो देयर इज दिस मिसकंसेप्शन अराउंड पीपल की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल तो मतलब बहुत ही कुछ एक्सपेंसिव हो गया, या इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं वगैरह, विच इज सो नॉट ट्रू, क्योंकि हम वैसे तो बहुत ही मैथ कर लेते हैं कि इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो इतने टाइम बाद इतना कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, बट ये चीजों में भी होता है। अगर तुमको भले ही कोई भी चीज जैसे कि शैम्पू बार ले लो, वो थोड़ा सा महंगा लग रहा है, बट तुम देखो कि वो कितना चल रहा है, वो 7 महीने तक भी चल जाएगा आराम से, विच इज आई थिंक वेरी गुड कंपेयर टू आर शैम्पू बॉटल्स विच आर एम्प्टीड इन less than a month because we constantly wash. So yes, definitely I've seen so much of impact. Again, coming to green period options also, you save so much every day. Like even if you buy good quality cotton disposable pads, they are very expensive. The options are very expensive compared to if you invest one time in a good period panties, then yeah, they are very economical. They'll go up to 2 to 5 years. तो मतलब बहुत ही ज्यादा सेविंग्स तो हो ही जाती है. वंडरफुल वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली राइट। धनुष ने जिस तरह से कहा कि आप ओवर द पीरियड जब इन चीजों को यूज करने की आदत डालते हो ना, यू विल सी द डिफरेंस। एंड वेरी वेल सेड धनुष, मुझे एग्जांपल बहुत अच्छा लगा। शैम्पू बार को लेकर लोग हेजिटेंट है, but you're absolutely right, they last longer. You don't have to switch your shampoo bottles, मतलब शैम्पू बॉटल्स की तरह हर महीने आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। मतलब आई कैन ऑल्सो प्राउडली से, मैं जो लास्ट अभी शैम्पू बार यूज कर रही हूँ उसको मुझे, yeah, it's been 5 months and it still stays. So yes, of course, over the longer period अगर आप ये switch करते हो, इवन हम प्लास्टिक बॉटल की जगह जब हम स्टील बॉटल की बात करते हैं या सिरेमिक बॉटल की बात करते हैं, टेराकोटा बॉटल की बात करते हैं, you are not throwing it, you are again and again using it. So of course economically इसका impact, जो कि धनुष ने जैसे उस दिन भी मेरी बात हुई थी, it is layered, वो सामने नहीं दिखता है, but over the period of time you can see. Again, she has been advocating more about this green periods also. If you opt for a menstrual cup, if you opt for the green panties,
Of course, because you're not throwing that pad again and again every month into the landfill. Okay, जब जरूरी है, मैंने भी बरसों यूज किया, I won't deny it. But now that the option is available, now when you know there are the substitutes which are going to help over the longer period of time, I think that is best to choose. And जब हम वही बात करते हैं छोटी छोटी इकोनॉमिकल इसकी, so आप लोग अगर धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट करेंगे, you will understand how it helps in lowering your utility bills, जो शायद आपको पहले महीने में नहीं दिखेगा, ऑफ कोर्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर ऑप्टिंग कि रूम से बाहर निकलते टाइम आपको सारे बटन स्विच ऑफ करने हैं, एसी की Yes. जगह खस के पर्दे या कुछ और सब्स्टिट्यूट्स अगर आप लेते हैं, आप अपनी बॉटल्स बार बार खरीदने की जगह रिफिल करते हैं, आई थिंक कहीं Mm-hmm. ना कहीं आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज यू आर समवेयर अवॉइडिंग दैट प्लास्टिक प्रोसेस्ड फूड जो कि रीयूजेबल भी नहीं होता है, यू जस्ट ईट इट एंड थ्रो इट। आप कहीं ना कहीं अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि दिखाई नहीं देगा, यू कांट सी कि एक फुटप्रिंट है जो रिड्यूस हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप ये सारी चीजें चाहे इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, चाहे कम्युनिटी एंगेजमेंट में करते हैं, that is certainly going to help you because मैं अगर मोटा मोटी बात करूं, when you take say offices or say schools and colleges, हम Mm-hmm. sustainability का economic angle देख सकते हैं if they are using the renewable energy, if they are Yeah. opting for offices जैसे कि आजकल green building है, then there is Yeah. eco-friendly transportation, carpools, there are solar powered things, and then there is waste reduction and recycling. So there are a lot of things which we start doing, they will start giving you returns. वो एक Yes. इसकी तरह होता है ना, म्यूचुअल फंड की तरह ये रिटर्न आएगा, Yes. थोड़ा सा टाइम लगेगा, I'll say like that. Definitely. Yes. So Definitely. right, and well said again. मैं धनुषिका फिर से आपको चैनल ऑफ कोर्स बताना चाहूंगी, इट इज सस्ती हस्ती जिंदगी, डू फॉलो हर, चेक आउट हाउ शी हैज बीन एबल टू टेल यू कि किस तरह से हम इन चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमने भी शैम्पू बार की बात की, स्किन केयर की बात है, चाहे आपकी हेयर केयर की बात है, किसी भी तरह का सेल्फ केयर है, किसी भी तरह के घर में कोई चीज को लेकर है, शी हैज बीन शेयरिंग लॉट ऑफ वंडरफुल वीडियोज दैट विच कैन हेल्प यू कि हाँ हम इस सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट इस तरह को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। रील्स की बात चल रही है, तो धनश्री एक रील के बारे में जरूर पूछना चाहूंगे, ऑल्दो इट इज नॉट ओनली अ रील, इट इज अ सीरीज जो धनश्री ने की है, डीबंकिंग सस्टेनेबिलिटी अमीरों के चोचले हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सीरीज जो कि मैंने 2-3 बार जाके देखी, what kind of a content she has shared, उसके बारे में बताओ, मतलब what made you think about this, and that is actually really wonderful कि how people can get impacted कि हाँ ये देखो this happens and then you can change, ये कहाँ से आया दिमाग में, and what all this series is about. Yeah, so I think this is in continuation to what we were talking about कि जैसे कि लोगों को लग रहा है शैम्पू बार महंगा है तो उनको लग रहा है यार ये तो ऐसी, Right. क्या शैम्पू बार गरीब इंसान कैसे, ये अमीरों के चोचले, आई थिंक ये उधर से ही आ गया, किसी ने मुझे शायद कह दिया होगा तो तभी इट वाज लाइक कि नहीं ये एकदम सिंपल चीज है। एंड हमारे आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी काफी चीजें करते थे जो हम देखते हैं कि दिखाते हैं ना वो मीम्स में, जैसे कि कुकी का डब्बा है उसको खोलने चाहते हैं तो अंदर सुई धागे होते हैं। Right. तो वैसा ही एक ये है कि वो सालों से चलते आ रहा है, तो मुझे बस दिखाना था लोगों को कि सस्टेनेबिलिटी बहुत इनग्रेन्ड है अपने इंडियन रूट्स में। एंड उसका एग्जांपल यही है कि आपको ठीक है, आपको शॉपिंग नहीं करनी है एक्सपेंसिव ये शैम्पू बार वगैरह की, तो ठीक है आप बस शॉपिंग मत करिए, अपने कार्ट में से चीजें निकाल दिए, आपके पैसे बच गए, आप सस्टेनेबल हो गए, प्लैनेट भी बच गया। तो ये नहीं हुए अमीरों के चोचले, आई थिंक वही पूरा थॉट प्रोसेस था, to give them various examples of how they can do it, not just shopping भी, but जैसे कि wearing your mama's साड़ी on your farewell वगैरह instead of buying a new one, वो भी हो गया sustainable। तो yeah। That's really wonderful and absolutely right, धनुष ने जिस तरह से एग्जांपल्स उसमें छोटे छोटे दिखाए हैं, ये तो मैं भी अपने अर्लियर लाइक ब्रिंग दैट टॉक से सीरीज में हम कई बार बात चुके हैं कि इंडिया के कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ वेरी टबू और अ वेरी डिफरेंट थिंग, हम अपनी नानी दादी मम्मियों को ये सब करते हुए बरसों से देख रहे हैं। ओनली थिंग इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समहाउ ड्यू टू सम इन्फ्लुएंस, मीडिया इम्पैक्ट या जो भी कहे, हम सडनली दूसरी तरफ मुड़ गए हैं एंड वी आर थिंकिंग कि नहीं ये सही नहीं है, नया वाला ही सही है, जबकि वी हैव सीन लाइक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया धनश्री ने कि कुकी का डब्बा है वो सुई धागे के लिए यूज होता है। मेरे पास खुद अभी इस समय आइसक्रीम के 2-3 डब्बे हैं जिनको मैं कुछ ना कुछ रखने के लिए, जो पुराने डब्बे हैं आई ऑफ कोर्स यूज इट। लाइक हम इसमें एग्जांपल देते ही रहते हैं, कॉफी की बर्नियां हैं,
हनी की बनिया हाँ है. So there are a lot of jars which come into the house which can be used. इतना जरूरी नहीं है कि जाके 24 नए डब्बे खरीद कर लाने से ही आपका घर सुंदर दिखेगा. ऑफ कोर्स आपके घर में जो चीजें अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज करके भी आप अपने घर को ज्यादा इको फ्रेंडली, ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा माइंडफुल चॉइसेस से भर सकते हैं. एंड डू वॉच धनुश्री के ये वाले जो वीडियोस है मुझे बहुत पसंद आए थे. वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही प्यारे थे. ओके धनुश्री, आगे बढ़ते हैं. सो ये छोटी छोटी चीजें आई एम श्योर जो हमारी इंडियन ट्रेडिशंस में, हमारे इंडियन लिविंग में शुरू से हैं, बस इनको भूलिए मत. इवन जैसे अभी तनिष्क ने थोड़ी देर पहले ग्रीन पीरियड की बात की. मैं सिर्फ पीरियड्स ही नहीं, मैं बच्चों के डायपर्स को लेकर भी एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी कि एट टाइम्स मैं प्राउडली कहती हूँ आई हैव kept my both kids in the cotton langote diaper. बहुत ही कम यूज किया until इस बहुत ट्रैवल करना हो या समथिंग लाइक दैट. आई एम टोटली अगेंस्ट इट. सो ये सारी चीजें तो आई एम श्योर हमारी मॉम्स ने, हमारी नानी दादी ने हमें सिखाई ही है. कंपोस्टिंग है, कंपोस्टिंग अगेन आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी, माय मॉम यूज्ड टू कीप 2 डस्टबिन्स. तब मुझे समझ नहीं आता था व्हाई, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू पुट चाय पत्ती, आलू के छिलके, प्याज के छिलके ना डिफरेंट. तो मुझे कंपोस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, बट शी इंश्योर्ड कि शी हैड केप्ट 2 डस्टबिन सेपरेटली. तो ये जो हम वर्ड्स आजकल देते हैं सेग्रीगेशन, या जब हम वर्ड कहते हैं कि ओके माइंडफुल चॉइसेस, यू आर वेरी राइट इन सेइंग कि इंडियन कम्युनिटी में, एक इंडियन सोच में ये इनग्रेन्ड है. द ओनली आई मस्ट से नॉट द वर्स्ट पार्ट बट द सैड पार्ट है कि हमने कहीं ना कहीं एक बीच में वो पर्दा लेकर आ गए हैं, एंड उन चीजों को हम साइड रख के वी आर फॉलोइंग समथिंग एल्स व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग अस. सो वंस अगेन टू ऑल माय लिसनर्स, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज फॉलो धनश्री. शी हैज बीन शेयरिंग वंडरफुल एग्जांपल्स जो आप अपनी डेली लाइफ में अगर करते हैं, you will be somewhere helping in the social impact, in the environmental impact also, in reducing the carbon footprint. ओके धनुषी, एक छोटी सी चीज पूछूंगी कि लाइक आप जब कॉलेज में थी, तब भी ये सस्टेनेबिलिटी वगैरह वर यू प्रैक्टिसिंग, या तब था, मतलब हाउ डिड यू इन. राइट. यस यस. तो इतना शायद कॉन्शियसली नहीं हो पाता था या इतना एक्टिवली नहीं कर पाता. तो जब मैं कॉलेज में थी तो तभी शायद प्रोबेबली लेबल नहीं था या मुझे पता भी नहीं था, बट छोटी मोटी चीजें तो करती थी. लाइक आई रिमेम्बर कैरिंग माई ओन वाटर बॉटल, दैट तो यूज टू बी देयर. आई रिमेम्बर कैरिंग माई हैंकरचीफ, दैट यूज टू बी देयर. सो इतने ज्यादा ज्यादा चीजें नहीं करती थी, बट छोटी छोटी चीजें मैं डेफिनेटली करती थी जो बाद में जाके जब तुम रिफ्लेक्ट करते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सब तो मैं करती ही थी तो और कर लूंगी. तो यस. तो या. ओके लाइक दैट. ओके धनुषी, आपकी मैंने एक रील देखी थी जो मुझे थोड़ी सी याद आ रही है. 10 out of 10 things that changed my year, right? यस. I think वो आपने इसी साल डाली है. So जी. share some tips with my listeners कि what changed your year also, and what can help change the year of my listeners also who are मतलब क्या कहना चाहूंगी, जो चाहते हैं उस ग्रीन लेवल को अडॉप्ट करना या कोशिश करना चाहते हैं. सो प्लीज शेयर समथिंग बिकॉज आई लव दोस 10 on 10 points which you had shared. So share some tips with my listeners also, please. यस यस डेफिनेटली. तो कुछ टिप्स ऐसे शेयर करूंगी मैं. सबसे पहली चीज तो अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो मैं वापस से कहूंगी आप अपना फीड और एल्गोरिदम बदल दीजिए. आप आपके जो गोल्स है आप उन गोल्स वाले लोगों को फॉलो कीजिए. अगर आपको ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा कॉन्शियस होना है तो उन लोगों को ही ज्यादा फॉलो कीजिए, बिकॉज आप वही कंटेंट से इंटरेक्ट करेंगे. अगर आपको लोग बेच ही नहीं रहे कपड़े तो आप कपड़े नहीं खरीदेंगे फिर, क्योंकि हम आपको बेचते हैं कि आप बॉटल कैरी करो. So yes, it definitely influences you. It influences your choices. And another thing I would say कि always do your research. I always say this कि even if मैं भी अगर आपको बोल रही हूँ आप जाके ये शैम्पू बार लीजिए, तो आग बंद करके मत लीजिए. Do your own research and then decide what works for you. So in all cases, the makeup that you choose, the period products that you choose, or whatever food you want to choose, like you definitely should keep on checking whether the company, whatever the products they are selling you to, are they right or not for you. Like I think if for makeup, so everybody does a lot of research. So हमारी रिसर्च थोड़ी लिमिटिंग हो जाती है कि हम बस ब्रांड्स, प्राइसेस एंड व्हाट इज ट्रेंडिंग वी कंपेयर. आई थिंक वी शुड गो अ स्टेप बियॉन्ड एंड कंपेयर द इंग्रेडिएंट्स आल्सो. आर दे सेफ फॉर अस और नॉट. लाइक सो आई हैव read this कि the makeup products which talk about कि they last a long
दे लास्ट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, दे आर नॉट गुड फॉर यू, बट हम खरीद लेते हैं क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है लॉन्ग वगैरह। लास्टिंग, बट राइट। वैसा, हाँ, बट वैसा नहीं होता है। द गुड प्रोडक्ट इज जो लास्ट लॉन्ग नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग लास्टिंग है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा आप अपना लॉजिक, अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आपके लिए क्या अच्छा है। सो गो दैट एक्स्ट्रा माइल, डू योर ओन रिसर्च। एंड या एंड डेफिनेटली कि स्क्रोलिंग कम कीजिए, शॉपिंग एप्स जितना हो सके डिलीट कर दीजिए। या एक चीज मैं ये फॉलो करती हूँ कि इवन इफ, आई मीन, आई ऑल्सो डू शॉप, आई ऑल्सो आई एम टेम्पटेड टू शॉप, बट लेट्स से अभी अगर मैंने कार्ट में कुछ चीजें डाल दी है तो यू स्लीप ऑन इट, यू पुट एवरीथिंग इन योर कार्ट एंड देन स्लीप ऑन इट, कम नेक्स्ट डे। एंड नेक्स्ट डे अगर आपका प्रॉब्ली मन नहीं होगा क्योंकि आप वो जोन में नहीं हो खरीदना है, तो आपकी प्रॉब्ली जो रेट ऑफ शॉपिंग है वो शायद कम हो सकती है, आपके पैसे भी बच जाएंगे एंड टाइम स्पेंड बहुत हो जाता है स्क्रोलिंग के टाइम पे। सो यू आर सेविंग मनी एंड यू आर सेविंग टाइम एज वेल। सो या, फ्यू टिप्स। नहीं नहीं, दे आर रियली नाइस टिप्स। एंड जो धनुषी ने अभी बोले हैं उसी के साथ साथ, इफ यू गो टू हर हैंडल विच विल अगेन आई टेल यू, सस्ती हस्ती जिंदगी, इट इज SUSTY, सस्ती हस्ती जिंदगी। उन्होंने बहुत अच्छा सा एक अभी स्क्रॉलिंग वाला सस्टेनेबिलिटी कैटलॉग धनुषी ने डाला था, जिसमें शी हैज ऑफ कोर्स सजेस्टेड यू कि आप कैसे सोप बार की जगह सोप बार यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द बॉडी वॉश। आप शैम्पू बार यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दोस प्लास्टिक रेगुलर बॉटल्स। You can switch to a cloth pad or menstrual cup instead of disposable pads. As she was telling about the green makeup, everlasting की layers की जरूरत नहीं है। आप इवन अपने घर में भी चीजें बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ लाइक बेसन, आटा, इन सब चीजों को यूज करके भी देयर इज अ वंडरफुल फेस मास्क जो हम बना सकते हैं। यू कैन चूज इको डिटर्जेंट ओवर टॉक्सिक ब्रांड्स, एंड यू कैन यूज सॉलिड परफ्यूम्स, जिसको जैसे कि मुझे लगता है इत्र है या नेचुरल फ्रेग्रेंसेस है, ओवर द या, परफ्यूम और द कंप्रेस बॉटल्स। एंड अगेन, या, जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि शी कैरीज हर वाटर बॉटल विच इज रीयूजेबल, शी कैरीज अ ट्रैवल कटलरी, अ फोल्डेबल बैग, हैंकी, जो कि धनश्री ने बहुत अच्छा कहा कि कॉलेज टाइम से, एंड मुझे लगता है सिर्फ बात कॉलेज की नहीं धनश्री, आई थिंक हम लोग ना सभी ने स्कूल में वो हैंकी यूज किया है। आई डोंट नो बड़े होने के बाद क्या हो जाता है, वो हैंकी टिश्यू पेपर की जगह क्यों ले लेता, आई एम रियली क्लूलेस। मुझे खुद नहीं समझ में आता। बिकॉज देयर आर पीपल, जैसे मैं खुद बाहर जाती ना, माई किड्स वेरी वेल नो मॉम टिश्यू पेपर हाथ नहीं लगाएगी, और मेरे पास अगर कोई टिश्यू पेपर आ भी जाता है ना, मैं बहुत अच्छे से आकर अपने किचन में रख देती हूँ, मे बी टू यूज इट सम टाइम लेटर, यूज या जो भी, बिकॉज वो गलती से आ गया, सो आई जस्ट डोंट थ्रो इट। दे वेरी वेल नो कि ये घर से निकलेगी तो दो हैंकीज लेके निकलेगी। सो आई थिंक ये चीजें ना नर्सरी वगैरह में भी ना बच्चों को सिखाया जरूर जाता है कैरिंग या, हैंकर जी, बट पता या, नहीं वो बाद में बड़े होकर वो हैंकी टिश्यू पेपर में क्यों कन्वर्ट हो जाता। वाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद using those single use bottles? या, So या, lovely said कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो धनुषी अपने हैंडल पे भी को शेयर कर रही है, and they are very small habits which if you implement can help you या, lot. So these are the few things जो धनश्री अपने हैंडल सस्ती हस्ती जिंदगी पर भी हमेशा शेयर करती है। एंड आई ऑल्सो लाइक, उन्होंने एक और इसी तरह के स्कूल कैटलॉग के एंड में, जैसे कि 5 आवर्स है या 6 आवर्स है या 8 आवर्स है, आप जिन भी आवर्स को फॉलो करते हैं प्लीज आवर्स को तो बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मेरा फेवरेट आवर है रिफ्यूज। एंड मुझे रिड्यूस रीयूज रिसाइकल से पहले सबसे अच्छा लगता है रिफ्यूज। रिफ्यूज क्या करें? सो धनश्री ने कैटलॉग में बहुत अच्छे से एक बड़ा प्यारा सा उन्होंने डाला है, रिफ्यूज क्या कर सकते हैं। यू कैन रिफ्यूज डिस्पोजेबल, you can refuse freebies, and she is right in saying that, because मैंने literally लोगों को देखा है जहां freebies मिलते हैं, they feel like yes you should have them, आपको उसकी जरूरत हो चाहे नहीं हो। So this is really nice when you have said refuse, because मेरा favorite are refuse है, ना करो, मना करो, मत दो। So yes, of course you can refuse these freebies and disposable. What you can reduce, you can reduce your waste जो हम generate करते हैं, and impulsive buying. So perfectly said धनश्री, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे को रिड्यूस वही चीज करनी है कि जो हम यूं ही जाकर लेकर आ जाते हैं ना, उन चीजों को रिड्यूस करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट इज रीयूज, व्हाट यू कैन रीयूज, एज हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जार्स, बैग्स, कंटेनर्स, क्लोथ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जैसे धनुषी ने बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया, मॉम की साड़ी, आई थिंक ये तो जनरेशन से चला आ रहा है। नॉट ओनली मॉम की साड़ी, आई थिंक हमारे इंडियन इसमें ना ये भी है कि
कजन्स वगैरह के कपड़े वगैरह भी हम बहुत अच्छे से प्यार से पहन लेते हैं, वी डोंट से नो टू इट. सो दैट इज अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ाता है, एंड दैट हेल्प्स Yeah. टू यूज द क्लोथ्स ऑल्सो. Then Yeah. next comes the repair. Of course, this also I love. You can stitch the clothes, you can fix the tabs and etc. And you can revive whatever old is with you. अगर आपका कोई cushion old हो गया है, आपकी कोई bedsheet या bag old हो गई है, be a little creative, have some patchwork on it. You can fix Yeah. the things which are broken. आपका फिर वो चाहे आपका cup हो, shoe हो, bag हो, everything can be fixed, and you can add on to the age and life of that thing by doing this repair. And then comes a recycle. रिसाइकल सिर्फ वही करें जो आप रिफ्यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, रिड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड रियूज या रिपेयर भी नहीं कर पा रहे. सो दैट वाज अ वंडरफुल इंस्टाग्राम का आपका जो स्क्रॉल है. I love this a lot. So do follow Dhanashri Agarwal on Sasti_Hasti_Zindagi. She has been sharing such beautiful things. And मुझे सबसे ज्यादा अच्छी ये बात लगती है जब भी मैं किसी यूथ को इंटरव्यू करती हूँ धनश्री, कि यू पीपल आर सो कॉन्शियस एंड माइंडफुल एट दिस एज. बिकॉज आपने बिल्कुल ठीक कहा, एट टाइम्स ऑफ कोर्स हर इंसान का मन करता है, आपको भी नई चीजें खरीदने का मन करता होगा, आपको भी लगता है कि दिस इज ट्रेंडिंग, दिस इज अ फैशन, आई शुड बाय. Um, ऑफ कोर्स कभी कभी खरीदने की मनाही तो बिल्कुल है ही नहीं, बिकॉज बाय yeah. ओनली वी आर द वंस हु विल बी सेइंग कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है. बट यस, वन कैन बी Yeah. माइंडफुल, वन कैन बी कॉन्शियस अबाउट कि मुझे क्या खरीदना है, क्या मुझे Yeah. सच में उसकी जरूरत है. एंड देन हमने जैसे शुरुआत में बात की थी कि सिर्फ एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को अवॉइड करना, सिर्फ एक डब्बे का अवॉइड करना, दैट इज नॉट द वन थिंग. आप कहीं ना कहीं उस चीज को अवॉइड करके सोशली एंड इकोनॉमिकली भी अपने उस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन इज सर्टनली गोइंग टू यू हेल्प यू at an individual level as well as the community level. So, Yeah. Dhanashri, that was really nice knowing your journey, and especially of the Sasti Hasti Zindagi, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. And kudos to you for at this age, at the peak of youth, you people are so conscious, so aware कि कभी कभी हमें घर के बड़ों को समझाने में बहुत मुश्किल आती है, but thanks to you youth, that when you people are sharing the things on platforms like Instagram and YouTube, people are more able to understand कि Yeah. yes, this is doable, ये किया जा सकता Yeah. है, not that Yeah. difficult. And जैसे कि थोड़ी देर पहले धनुश्री ने कहा ना, you have to go that extra mile. Mile मतलब 1 किलोमीटर नहीं जाना है. You just have to take that small step in bringing those Yeah. change जो कि आपको Yeah. सस्टेनेबिलिटी या इको फ्रेंडली लिविंग में हेल्प कर सके. Yeah. So thank you Dhanashri. Anything else that you Thank would like to share or say with my you. Yeah. listeners? Please Yeah. Dhanashri, a word from you. Yeah, thank you so much. I really had this great conversation. I really had so much fun. Like the entire time, I was just smiling. Your voice is so good. Please do follow Prachi as well. She is hosting all of us, our whole sustainable community. She's taking so much of efforts to amplify the voice, and I think that is also something wonderful because yeah, we need to make a lot of noise. We at least need to spark the conversation. भले ही लोग मजाक उड़ा रहे कि ये क्या कचरा जमा करके कंपोस्ट कर रही है, but at least the conversation is started. So yes, to all of you, I would like to say keep make better choices, do your own research, and yeah, please follow me and follow Prachi as well. Yeah, Thank you, Dhanashri. Thank you very much for your time and sharing your lovely journey with all of us. To all my listeners, our Instagram handle once again is Sasti_Hasti_Zindagi. उनको इसी तरह से हंसते रहने के लिए हेल्प करिए एंड सस्टेनेबिलिटी को चूज करिए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर अगर आप सस्टेनेबिलिटी को चूज करेंगे, आप इको फ्रेंडली लिविंग को चूज करेंगे, तो धनश्री के साथ साथ बहुत सारे लोगों की हंसी ऐसी है जो सिर्फ ग्रो करेगी. So just help the people who have this green soul, and you can also be the part of that change, which can bring a better, greener, and a healthier planet for our coming generations. So that's all for today. I'll close the quote. Okay, this is something that I would love to do. This is something good. Thank you, love to you, to your handle, and to all our sustainability enthusiasts and all those who are working and trying their best to help people know कि yes, ये किया जा सकता है और ऐसे किया जा सकता है. I'll be closing the today's episode with another quote which says, "Sustainability is a journey, not a destination. We must constantly strive to do better, to be better stewards of the earth
एंड ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, जिसमें कि एनिमल्स, प्लांट्स सब आते हैं। सो आपके वो छोटे छोटे से एफर्ट्स बहुत ज्यादा काउंट करते हैं, उनको करना कभी मत छोड़िएगा। So that's all for today. Tatva Girl will be back with yet another episode of similar motivating and inspiring and eco-friendly stories. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इको फ्रेंडली चॉइसेस एंड माइंडफुल चॉइसेस को लेना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी को अपनाकर हंसती हुई जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रणाम। बाय बाय। नमस्कार।